1959 ମସିହାରେ ଚାଇନାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ତିବ୍ବତରେ ବାସ କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ମାରିବା ସହିତ ତିବ୍ବତର ମୁଖିଆ କୁହାଯାଉଥିବା ଦଲାଇନାମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଚୀନ ସେନାର ଅତ୍ୟାଚାର ନ ସହି ଦଲାଇନାମା ସହିତ 85,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ନିଜର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବରହମପୁର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 85 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଯାହା ଏବେ ଜିରାଙ୍ଗ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦଲାଇନାମା ମଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 1959 ମସିହାରେ ଚାଇନାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ତିବ୍ବତର 13ତମ ମୁଖିଆ କୁହାଯାଉଥିବା ଦଲାଇନାମାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଇଲା। କିନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ କିଛି ଏପରି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା, ବିନା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀକୁ ସାଥିରେ ଧରି ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ତିବ୍ବତର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଜାଣିବା ପରେ ତିବ୍ବତର ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଲାସାଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦ ପୋଟଲା ପ୍ୟାଲେସରେ ଦଲାଇନାମା ରହୁଥିଲେ। ତିବ୍ବତର ବାସିନ୍ଦା ଜାଣିଥିଲେ ଚୀନ ସରକାର ଦଲାଇନାମାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି। ଦଲାଇନାମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଚୀନ ସେନାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ସେନା ତିବ୍ବତରେ ପଶି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତିବ୍ବତର ରାଜଧାନୀ ଲାସାଠାରେ ଚୀନ ସେନା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଲାଇନାମା ନିଜର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦ ପାଟଲା ପ୍ୟାଲେସରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜର ଦେଶ ଛାଡ଼ି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 1959 ମସିହାରେ ଭାରତର ଭୂମି କୁହାଯାଉଥିବା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିବା ଏ ଦେଶ ଚୀନ ସେନାର ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ଛାତ କୁହାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଦେଶରୁ ଅନେକ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା। ତିବ୍ବତରୁ ଆସିଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀକୁ ଭାରତ ସରକାର ଅତିଥି ଦେବର ଦର୍ଜା ଦେବା ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, କାରଣ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତକୁ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର। ଭାରତ ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ତିବ୍ବତରୁ ଆସିଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀକୁ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1962 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିଠାରେ ବାସ କଲେ। 1998 ମସିହାରେ ଦଲାଇନାମା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଠ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। 2003ରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ 2008ରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଠ ପଦ୍ମସମ୍ଭବା ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା, କାରଣ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିବ୍ବତର ଏକ ସମାରୋହରେ ଭାରତରୁ 2 ଜଣ ଟିଚରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହେଡ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଶାନ୍ତ ରକ୍ଷିତା ଏବଂ ପଦ୍ମସମ୍ଭବା ସେହି ସମୟରେ ତିବ୍ବତରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିସ୍ତାର ହେବା ସହିତ ଚୀନରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତିବ୍ବତର ବାସିନ୍ଦା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନର ଦର୍ଜା ଦେବା ସହିତ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ କହୁଥିବା ସମୟରେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତିବ୍ବତରେ ଦଲାଇନାମାକୁ ଜ୍ଞାନର ସମୁଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତିବ୍ବତର ଶରଣାର୍ଥୀ ରହିବା ପରେ ଦଲାଇନାମା ପଦ୍ମସମ୍ଭବା ନାମରେ ମଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଜିରାଙ୍ଗ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ। माता पिता जब आसला तिब्बतरू यार 1961-62 रे ये गाँवटा है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तांके यार पठेले। साठू से समय रे किछि नथिला, सब जंगल थिला। स्लोली डेवलप हैला। हमर इटा मंदिरटा भी 2010 रे इनॉग्रेशन करला हिज होलनेस दलाई लामा। मंदिर मेन गुरुजी अछि हिज एमिनेंस नामका टिमेलम बचे एवं गेटुल जिमेल बचे। यार हमर 180 वंश रहुछि। सुकाल टू अपन मेन प्रेयर हॉल ले 6 बजे टू प्रेयर हेबो 6:30 और दिन को 3 बजे टू 3:30 प्रेयर टुगेदर होछि। तापरे 8:30 टू क्लास हेबे 12 और रिचुअल म्यूजिक पूजा बजा फजा जाबो स्टडी पाए 2-3 years 2-3 साल। तापर फिलोसफी 9 year कोर्स अच्छी। तापर अपन आचार्य हेबे, आचार्य इन बुद्धिस्ट फिलोसफी। तापर अपन निजे एक्सपीरियंस कर पारबे, बुद्ध धर्म रे प्रचार भी कर पारबे।
रिचुअल हमारा मुख्य फेस्टिवल अच्छे बुद्ध पूर्णिमा जो कि वैशाख महीना को अच्छी पूरा महीना को हमें मानी जाऊँगी मानुची से समय रे हमें फास्टिंग पूजा करे तापर अकॉर्डिंग टू लूनर कैलेंडर टिबेटन कैलेंडर हमार फर्स्ट मंथ रे महासाधना पूजा करके चलुची से कंटिन्यू दिन रात पूरा कंटिन्यू चलबी 15 टू 17 दिन तक तापर लामा डांस कहे 2 दिन मार्क्स डांस 2 दिन करुची सेमती वर्ष को 3-4 मुख्य फेस्टिवल पूजा चलती अलोकितेश्वर अच्छे कंपैशन बुद्धा करुणा लव हेले से मंत्र जति जप करेंगे अपन ये संसार ठू बाहर संसार को 6 रियलम्स अच्छी बुद्ध देवता मनुष्य पक्षुपाक्ष और नरक हांग्री गोस से सब कोटि जन्म हेले अपन दुख तक से ठू मोक्ष पाइबाई ओम माने पे में जप अच्छी आउ थोड़ा गोटे अच्छी ओम माने पे में जप करले अपन मन रे करुणा पैदा हो करुणा पैदा हेले जेते कि वर्ल्ड अच्छे ताकू शांति पाइबे एबे कौन अच्छे लोक को प्रति लव न करे निजे को लव करे मु माई सेल्फ करके तापर गंडगोल से शुरू हो मु माई सेल्फ तापर मोर फैमिली तापर मोर कंट्री कहीकि एबे केते नुकसान सब कर से न करे अपन सबको लव करेले करुणा पाइले ऑटोमेटिक शांति पाइबे पद्मसंभव हमारो सेकेंड बुद्ध द लोटस बोन बुद्ध गौतम शचमुनि बुद्ध शचमुनि कहले मु आउ प्रथम आउ थर आसबि पद्मसंभव नारे आसिक तिब्बत मु धर्माटा फैलेबी लोटस बोन बुद्ध कह जाए किंतु एनके साहू कहीकि उड़ीसा गोटे प्रोफेसर गोटे अच्छी से क्लेम कर संबलपुर राजार पो पद्मसंभव किंतु पद्मसंभव कलिंग राज्य आसीला हमर टेक्स रे अच्छी कलिंग राज्य आसिक उड़ीसा आसिक तापर तिब्बत गले तिब्बत 7-8 सेंचुरी रे तिब्बत किंग ठिसन देचन ताको इनवाइट करले तापर तिब्बत को जाई तिब्बत को बुद्ध धर्मटा फैलेला गौतम बुद्ध समय रे तिब्बत को धर्म नथिले गौतम बुद्ध समय पूरा विश्व रे ज़्यादातर बेसी हिनाजान प्रचार करला पद्मसंभव तिब्बत को जाकर हिनाजान महाजान भीतर बजलजान कह बजलजानटा फैलाइला तिब्बत भीतर पद्मसंभव गोटे महापंडिता नालंदा यूनिवर्सिटी महापंडिता भी थिले तेणुक हमर पार्टिकुलरली पद्मसंभव को फॉलो करछि तेणुक ये ना मंदिर नाटा पद्मसंभव महाविहार कह जाए पेमा केसर यांसे जोगे मोट ने पेमा जोने शेसोटा कोल्दो कांडो मांबे को जे सो दाडो जे जेंजे लाजे सो सो गुरु पद्मा सिद्धे। नमो बुद्धाय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान गुरु की जिन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म को विश्व भर में प्रसिद्ध किया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। लेकिन कौन था वह व्यक्ति जिसने तिब्बत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया? आइए जानते हैं उनकी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु पद्मसंभव तिब्बत में बौद्ध धर्म के संस्थापक और निंगमा स्कूल के प्रमुख गुरु देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। हमारे आज के विषय गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु ऋणपोचे के नाम से भी जाना जाता है।
उनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन तिब्बत में बिताया और वहीं पर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। दोस्तों, गुरु पद्मसंभव की शिक्षाएं क्या थीं और वे कैसे तिब्बती बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण थीं? आइए जानते हैं। गुरु पद्मसंभव स्वयं बुद्धों की उत्पत्ति हैं। मन की उत्पत्ति बुद्ध अमिताभ की है, शरीर की उत्पत्ति अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की है और वाणी की उत्पत्ति बुद्ध शाक्यमुनि से है। कहा जाता है पद्मसंभव का उदय उदियाना राज्य में धनकोषा झील में तैरते कमल के फूल में दिखाई देने वाले 8 वर्षीय बच्चे के रूप में हुआ था। ओडियाना के राजा इंद्रबोधि उसे अपने महल में वापस ले आए और उसे राज्य के राजकुमार के रूप में ताज पहनाया। पद्मसंभव ने महसूस किया कि चूंकि राजनीति उनके आत्मज्ञान के अनुसरण के लिए विरोधाभासी है, इसलिए उन्होंने इसके बाद पद छोड़ दिया। इसके बाद वे बोध गया और कई स्थानों पर गए और कई महान विद्वानों, आचार्यों और डाकिनियों से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सामान्य और असामान्य सिद्धियां हासिल की। विनय, सूत्र और अभिधर्म की 3 टोकरियों के पूरे सिद्धांत को समझा और पूरा किया। साथ ही बाहरी और आंतरिक गुप्त मंत्र, मौखिक प्रसारण और उच्चतम और अंतरतम के गूढ़ निर्देशों की शिक्षा दी। इस प्रकार उन्होंने पूर्ण जागरूकता के उत्तम स्तर के लक्षण दर्शाए। पद्मसंभव ने भारत, नेपाल और तिब्बत में कई स्थानों का दौरा किया और रुके। इन स्थानों पर पद्मसंभव का आशीर्वाद था और ये अब तक पवित्र बने हुए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने नेपाल में यांगला शोड़ की गुफा में विशुद्धा देवता की साधना की और वह अपनी पत्नी मंदारवा को मराठिका की पहाड़ी गुफा में ले गए, जिसे वर्तमान में नेपाल में हलेशा के नाम से जाना जाता है, जहां उन्होंने 3 महीने तक दीर्घायु की सिद्धि अनुष्ठान किया और अमर वज्र शरीर को साकार किया। माना जाता है कि पद्मसंभव की 8 अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं और इसलिए उन्हें अलग अलग तरीकों से चित्रित किया गया है। कुछ अभिव्यक्तियों में उन्हें खोपड़ी कटोरा के साथ राजसी पोशाक में और हाथ से ढोल पीटते हुए अपनी पत्नी के साथ गहरे नीले अवतार में या एक दीक्षित बौद्ध भिक्षु के रूप में शामिल किया गया है। उनके कुछ उल्लेखनीय चित्रणों में भूटान में पारो पुल की दीवार पेंटिंग और हिमाचल प्रदेश में रिवॉल्सर झील की ओर देखने वाली विशाल मूर्ति शामिल है। तिब्बती में गुरु पद्मसंभव को आमतौर पर गुरु ऋणपोछे के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है अनमोल गुरु। गुरु ऋणपोछे पूर्णतः प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पूर्णतः जागृत व्यक्ति हैं, बुद्ध हैं। वह धीरे धीरे प्रबुद्ध नहीं हुए या बुद्ध शाक्यमुनि की शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू नहीं किया और अंततः ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु ऋणपोछे एक पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में अवतरित हुए। उनके स्वरूप के माध्यम से सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ पहुंचाने के लिए मौलिक ज्ञान दुनिया में प्रकट होता है। बुद्ध शाक्यमुनि ने पद्मसंभव के आगमन की भविष्यवाणी की। बुद्ध शाक्यमुनि ने वास्तव में गुरु पद्मसंभव की उपस्थिति की भविष्यवाणी की थी। 19 विभिन्न सूत्रों और तंत्रों में उनके आगमन और गतिविधियों की स्पष्ट भविष्यवाणियां हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध शाक्यमुनि ने उन छात्रों के सामने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा की जो उस समय उनके साथ थे। उनमें से कई, विशेष रूप से आनंद, बुद्ध के चचेरे भाई और निजी परिचारक, यह सुनकर काफी परेशान हुए। इसलिए बुद्ध ने आनंद की ओर रुख किया और उसे चिंता न करने के लिए कहा, मेरे महापरिनिर्वाण के 8 साल बाद पद्मसंभव नाम का एक उल्लेखनीय व्यक्ति कमल के केंद्र में प्रकट होगा और वास्तविक प्रकृति की अंतिम स्थिति के बारे में उच्चतम शिक्षा प्रकट करेगा, जिससे सभी संवेदनशील प्राणियों को बहुत लाभ होगा। बुद्ध ने वज्रयान की शिक्षा केवल चुनिंदा शिष्यों को निजी तौर पर दी। चूंकि इन उच्च शिक्षाओं का सार और यहाँ तक कि रूप भी सामान्य धारणा से परे है, इसलिए उन्हें गुप्त शिक्षाएं के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण में प्रवेश करने के बाद इन गुप्त शिक्षाओं को कई ज्ञान डाकिनियों द्वारा संरक्षित किया गया था। जब गुरु ऋणपोछे बुद्ध शाक्यमुनि के पुनर्जन्म के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने वज्रयान शिक्षाओं को उनकी संपूर्णता में प्रकट किया। यही कारण है कि गुरु ऋणपोछे को वज्रयान के बुद्ध के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि तिब्बत के 38वें राजा ट्रिसोंग देवतसेन ने पद्मसंभव को तिब्बत में आमंत्रित किया। रास्ते में
उन्होंने अपने सामने आने वाले सभी हानिकारक देवताओं और राक्षसों को वश में करने के लिए अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग किया और उन्हें धर्म का वफादार संरक्षक बनाया। तिब्बत में उन्होंने और राजा ने देश के पहले मठ साम्य मठ की स्थापना की और इसे पूरी तरह से मूर्तियों से सुसज्जित किया। इसके अलावा उन्होंने तिब्बत के पहले 7 भिक्षुओं को भिक्षु प्रतिज्ञाएं दी, मानकीकृत अनुवाद विधियां दी, अधिकांश सूत्रों और तंत्रों का संस्कृत से तिब्बती में अनुवाद किया और तिब्बत में पहली बार अध्ययन, चिंतन और ध्यान की परंपरा को मजबूती से स्थापित किया। इस प्रकार तिब्बत में बुद्ध धर्म सूर्य की किरणों की तरह फैल रहा है। पद्म संभव के शिष्यों में से 25 ने मुक्ति प्राप्त की और उनमें से 80 ने इंद्रधनुष शरीर प्राप्त किया। पद्म संभव 55 वर्षों तक तिब्बत में रहे। इस अवधि में उन्होंने लोगों में धर्म के प्रति आस्था जगाई, बुद्ध धर्म को भारत से तिब्बत लाया और तिब्बत को बौद्ध भूमि में बदल दिया। तिब्बत में पद्म संभव की गतिविधियों के बिना आज कोई तिब्बती बुद्ध धर्म नहीं हो सकता है। पद्म संभव ज्ञान के बुद्ध हैं। पद्म संभव पर अभ्यास करने से आप में स्पष्टता और फोकस विकसित होता है और लोडेन चौकसे पर अभ्यास करने से आप में दूरगामी क्षमताएं विकसित होती हैं। हम सभी ने कई बार सुना है कि हमारे मन और संपूर्ण ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप पहले से ही प्रबुद्ध है। फिर भी केवल यह सुनना पर्याप्त नहीं है। हमें आनंद पूर्वक प्रयास, साहस और प्रतिबद्धता के साथ अभ्यास करना होगा और यदि हम ऐसा करना जारी रखेंगे तो हमें वास्तविक स्वरूप का एहसास होगा। वास्तविक प्रकृति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बुद्ध या किसी अन्य द्वारा बनाई गई हो। सच्चा स्वभाव वही है जो है। कृपया अभ्यास करते रहें। प्रत्येक अभ्यास के लिए भक्ति और बोधचित्त की आवश्यकता होती है। स्वयं को प्रेरित रखें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप शिक्षाओं और पुस्तकों से जो सीखते हैं वह केवल सैद्धांतिक ज्ञान है जो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आप जो भी सीखते हैं उसे आपको अपने दिल में आत्मसात करना चाहिए और उसे पूरी तरह से खिलने देना चाहिए। जानकारी कैसी लगी? अभिप्राय जरूर दें। नमो बुद्धाय। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हजारों रिलीजन्स मौजूद हैं और उन्हीं में से एक है बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म, जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। दरअसल बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो आज से करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के द्वारा भारत में शुरू किया गया था और आज दुनिया की 7% से ज्यादा आबादी यानी करीब 54 करोड़ लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं। तो दुनिया में बौद्ध धर्म की शुरुआत आखिर किस तरह से हुई, इस धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं क्या हैं और कैसे ये दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बना, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले भगवान गौतम बुद्ध का जन्म आज से करीब 2500 साल पहले सन 480 BC के आसपास लुम्बिनी नाम की एक जगह पर इक्ष्वाकु वंश के राजघराने में हुआ था। आज के समय में ये जगह नेपाल के अंदर मौजूद है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से ताल्लुक रखती थी। जन्म के समय गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था, जबकि बुद्ध नाम उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दिया गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध का शुरुआती जीवन बड़े ही ऐशो आराम में गुजरा, क्योंकि उनके पिता उनके ऊपर दुख और पीड़ाओं को नहीं देखना चाहते थे। दरअसल जन्म के समय गौतम बुद्ध के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि वे आगे चलकर अपने पिता की राजगद्दी व राजपाट नहीं संभालेंगे, बल्कि इसकी जगह वे लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने का काम करेंगे। और ये भविष्यवाणी सुनने के बाद राजा शुद्धोधन काफी चिंतित हो गए थे। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि वे सिद्धार्थ को एक ऐसा जीवन देंगे जो पूरी तरह खुशियों से भरा होगा और जहाँ संसार के दुख व पीड़ाएं उन्हें छू भी नहीं पाएंगी। यही वजह थी कि गौतम बुद्ध ने अपना शुरुआती जीवन आलीशान महलों में रहकर बिताया, जहाँ उनकी हर एक इच्छा पूरी की जाती थी। यहाँ तक कि राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की सेवा में लगे बूढ़े, बीमार व बदसूरत दिखने वाले नौकरों को महल से निकाल दिया था और उनकी जगह जवान व सुंदर नौकर ही गौतम बुद्ध की सेवा में लगाए जाते थे। उनकी सेवा में लगा कोई भी नौकर उनसे जीवन के दुखों के बारे में कभी कोई बात नहीं करता था, जिसके चलते गौतम बुद्ध को कभी ये पता ही नहीं चल सका कि इंसान के जीवन में दुख जैसी कोई चीज भी होती है, बल्कि उन्हें तो लगता था कि दुनिया में खुशियों के अलावा और कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि दोस्तों, उनकी पसंद की एक सुंदर लड़की से उनकी शादी भी करवा दी गई थी,
लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध को अपनी लाइफ से कभी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने अपने जिंदगी के 29 साल इसी तरह महल में रहकर ऐशो आराम के साथ बिताए। लेकिन 29 साल की उम्र में जब वो पहली बार अपने महल से बाहर निकले तो जिंदगी की हकीकत को देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गए। दरअसल बाहर निकलकर उन्होंने पहली बार बूढ़े, बीमार, दुखी और मरे हुए व्यक्ति को देखा। और जब उन्हें पता चला कि ये सारे दुख दुनिया के हर एक इंसान को झेलने पड़ते हैं, तो उन्हें जिंदगी की असली सच्चाई का एहसास हुआ, जिसे जानने के बाद वे खुद भी पूरी तरह दुखी हो गए। इसी तरह एक बार जब वे अपने महल से बाहर घूमने के लिए निकले तो उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा जो उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा खुश और समझदार लगा। उसको देखते ही गौतम बुद्ध ने ये तय कर लिया कि वे भी अपना राजपाट और लग्जरियस लाइफ को त्याग कर अपना बाकी का जीवन उस मॉन्क की तरह ही बिताएंगे, ताकि वे इंसान के जीवन से जुड़ी कठिनाइयों और दुखों का जवाब खोज सके। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के 6 साल इसी खोज में एक सन्यासी रहकर बिताए। वे जंगलों में पेड़ पौधों की पत्तियां व फल खाकर गुजारा करते और अपना सारा समय ध्यान करते हुए बिता देते। दोस्तों, अक्सर वो मेडिटेशन करते हुए इस गहराई तक चले जाते कि उन्हें कई कई दिन तक खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। और इस कठोर तपस्या की वजह से ही उनका शरीर किसी कंकाल के जैसा नजर आने लगा था। दोस्तों, एक दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इसी तरह ध्यान कर रहे थे कि तभी उन्हें सच्चे ज्ञान का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि इंसान अगर अपनी इच्छाओं को खत्म कर दे तो उसे सभी तरह के कष्टों व दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में सब कुछ समय के साथ लगातार बदलता रहता है और इंसानों के पास उन चेंजेस को स्वीकार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। ये विचार आते ही उनके मन से मौत का डर पूरी तरह समाप्त हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और दोस्तों, वो जिस अवस्था में थे उसे बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य यानी निर्वाण माना जाता है, जहां इंसान के अंदर से दुख, पीड़ा और डर खत्म हो जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बाद में उस पेड़ को बोध वृक्ष और उस जगह को बोध गया का नाम दिया गया। साथ ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे सिद्धार्थ गौतम की जगह गौतम बुद्ध कहलाए जाने लगे। अब चूंकि गौतम बुद्ध चाहते थे कि दुनिया के दूसरे लोग भी उनकी तरह निर्वाण प्राप्त करके अपने दुखों से मुक्ति पालें, इसलिए उन्होंने 4 ऐसे नियम बनाए जिन्हें फॉलो करके दुनिया का कोई भी इंसान निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इन नियमों को 4 नोबल ट्रुथ यानी 4 आर्य सत्य कहते हैं और इन्हीं 4 नियमों पर पूरा बौद्ध धर्म आधारित है। तो चलिए अब जानते हैं बौद्ध धर्म के इन 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में। नंबर 1, दुख। इस आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने बताया है कि किस तरह ये दुनिया दुखों से भरी हुई है। वे कहते हैं कि सुख का ना मिलना, सुख को पाने का प्रयास करना और सुख मिल जाने के बाद उसको बरकरार ना रख पाना, ये हर एक चीज दुख का कारण है। यानी इंसान के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पूरा दुख ही दुख है और ये दुख मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म के जरिए दुख की ये साइकिल अनंत काल तक चलती रहती है।